हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक आईसीएसई बुक्स, सीबीएसई बुक्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हर चीज़, सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। हर चीज़ की तैयारी आप इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो विदाउट पेइंग एनीथिंग। यस, आपको 1 और 2 चैप्टर्स के बाद किसी भी तरीके के पेड सब्सक्रिप्शन को के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन take benefit without paying anything. So free education is what Magnet Brains is all about. So on this good news and this amazing note पे we are going to start with class 6 engaging English का unit 11. The name of the poem is The Village Blacksmith. अब ऑलरेडी इसके 2 वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, जिसमें एक जगह हमने एक्सप्लेनेशन देखा है और दूसरा वाला जो वीडियो है उसमें हमने इसकी समरी, पोएटिक डिवाइसेस और स्ट्रक्चर देखा है. Now we are going to start with the question answers. So पहला क्वेश्चन है, Where is the village smithy located? Village smithy कहाँ पे located है? So ये फर्स्ट लाइन जो है पोम की, उसमें इसका आंसर मिलता है. Village smith is located under a spreading chestnut tree. कहाँ पे? Under a spreading chestnut tree. Next is list the tools of the blacksmith as mentioned in the poem. इस poem में blacksmith के कौन कौन से tools जो हैं mention किए गए हैं. So the various tools mentioned in the poem are bellows, sledge, forge और anvil. Clear? ये 4 tools mention किए हैं. Next is why is the blacksmith able to look the whole world in the face? जो blacksmith है वो पूरी दुनिया को एकदम dignity के साथ face पे कैसे देख पाता है? The blacksmith is able to look the whole world in the face as he is honest and religious. क्योंकि वो बहुत ईमानदार है और वो religious है. Religious का मतलब यहाँ पे है hard working से. He is a person who loves his family, God and is content with what he gets in life. वो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है, वो भगवान को मानता है, प्लस वो एक बहुत ही ज़्यादा कंटेंट इंसान है जिसको लगता है कि लाइफ में जो मिल रहा है उसको बहुत ज़्यादा लालच नहीं है. He doesn't owe anything to anyone. और वो किसी के लिए मतलब वो जिम्मेदार नहीं है कि मैंने इससे ये लिया, मुझे ये वापस करना है, या मैंने इससे ले लिया, मैंने उससे ले लिया. उसने किसी से कुछ लिया नहीं है. So that is why he is a proud man with dignity and respect. Describe the sounds of the blacksmith at work. What are they compared to? अब यहाँ पे जो different sounds produce होते हैं blacksmith से, जो हमने पढ़ा है 3rd और 4th stanza में, वो कौन कौन से हैं? The various sounds one can hear around the blacksmith are the blows of his bellows and the swing of his heavy sledge with measured beat and slow. So यहाँ पे जो different sounds हैं जो हम सुन सकते हैं वो है blows of his bellows, swing of his heavy sledge with measured beat and slow. Okay. Next is what does the blacksmith do on Sunday? Why does it makes his heart rejoice? Blacksmith जो है Sundays को क्या करता है और क्यों उसका जो दिल है वो एकदम खुश हो जाता है? The blacksmith goes to church on every Sunday and takes part in prayers. So blacksmith जो है हर संडे को चर्च जाता है और प्रेयर में पार्ट करता है, मतलब प्रेयर्स का एक हिस्सा बनता है. He hears his daughter's voice in the choir and is delighted. वो अपनी बेटी की आवाज़ सुनता है choir में जहाँ वो गा रही है और उसका दिल खुश हो जाता है. He feels that he can hear the singing of his dead wife from heaven. उसे लगता है कि उसकी जो वाइफ है जिसकी डेथ हो चुकी है, उसकी हेवन से उसके गाने की आवाज़ आ रही है, जिसकी वजह से वो बहुत खुश हो जाता है. Why does he wipe a tear out of his eyes as he sits in church? जब चर्च में वो बैठा हुआ है तो उसकी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? वो अपनी आंसू क्यों पोंछ रहा है? On Sundays, the blacksmith goes to church where he is very happy to hear his daughter singing in the village choir. Sundays को blacksmith जो है वो चर्च जाता है जहाँ वो बहुत खुश है क्योंकि उसकी जो बेटी है वो विलेज क्वायर में गाना गा रही है. Her voice reminds him of his wife singing in paradise. उसकी जो आवाज़ है वो उसको याद दिलाती है उसकी वाइफ की, जो कि शायद उसके लिए हेवन से गाना गा रही है. And he wipes his tears when he thinks of his wife resting in her grave. और जब उसे अपनी वाइफ की याद आती है कि वो मर चुकी है, वो अपनी ग्रेव में रेस्ट कर रही है, तो उसकी याद में उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जो वो वाइप आउट करता है. क्लियर? ओके. अब नेक्स्ट है, you have to answer the questions with reference to the context. And the muscles of his brawny arms are strong as iron bands. Whose arms are described here? किसके arms के बारे में बात हो रही है? And why are they brawny?
सो ब्लैकस्मिथ्स आर्म्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड हियर, ब्लैकस्मिथ के जो आर्म्स हैं उन्हें डिस्क्राइब किया गया है. दे आर ब्राउनी एज दे आर बिग मसल्स एंड एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन बैंड्स. वो ब्राउनी इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत बड़े, मतलब ही इज एक्सट्रीमली पावरफुल एंड एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन बैंड्स. ओके, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट. अब ऑलरेडी हम पोएटिक डिवाइस में ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि इसमें सिमिली यूज हुई है, जहां पे उसके आर्म्स को आयरन बैंड से कंपेयर किया गया है. क्या कंपेयर किया हमने? स्ट्रेंथ कंपेयर की है. The muscles on his brawny arms are strong as iron bands. A figure of speech which involves a direct comparison between two unlike things. दो अलग अलग चीज़ों को जब आप directly compare करते हो with the words like or as is called simile. Simile is the figure of speech used here. यहाँ पे कौन सी figure of speech use की गई है? Simile. What other phrases have been used to describe the blacksmith's appearance? Blacksmith के appearance के लिए और कौन-कौन से phrases use किए गए हैं? So जो different phrases use किए गए हैं वो हैं large and sinewy hands, brawny arms, crisp black and long hair, face like the tan, wet brow with honest sweat. Wet brow with honest sweat. ये उसका physical description है. Okay? अब है next. And watch the burning sparks that fly like chaff from a threshing floor. How were the burning sparks formed? ये जो burning sparks है ये form कैसे हुए थे? The burning sparks come from the huge fire that the blacksmith uses in his forge. ये जो burning fire है ये कहाँ से आई है? ये आई है वो उस huge fire से जिसमें वो अपने जो forge में use कर रहा है. Who watched the burning sparks fly? Why did they love the smithy? उन कौन ये burning sparks को fly करते हुए देखता है? उनको ये smithy क्यों पसंद है? The school children who out of curiosity and admiration love to see the blacksmith work through the door which remains open. कहाँ से वो दरवाज़ा जो खुला रहता है वहाँ से वो blacksmith का काम देखते हैं. Children love to see the bellows which produce sounds like roaring. Children also love to see the sparks which keep flying and produce a scene like the flying husks during the threshing procedure. उनको जो है ये एक तो उनको बेलोस की आवाज़ अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कोई रोर कर रहा है, प्लस उनको ये जब वो मतलब आयरन को फौज में डाल रहा है या उसे मार रहा है, बीट कर रहा है, तो उसमें से जो स्पार्क्स आते हैं जो ह्यूज फायर में से, उन्हें वो उसको उड़ते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है. ऐसा लगता है कि कोई जो है थ्रेशिंग प्रोसीजर के टाइम पे जो हस्क फ्लाई करता है उन्हें वैसा लग रहा है. अब है व्हाट इज शैफ. Explain the figure of speech in the given lines. Chaff is the dry, scaly, protective casing of the seeds of cereal grains or similar fine, dry, scaly plant material. Chaff मतलब क्या होता है? जैसे गेहूं का धान होता है, चावल का धान होता है, ऐसा ही जो सूखा पार्ट होता है जिसको आप निकाल देते हो, बाद में उड़ा देते हो. जैसे मूंगफली होती है, उसको आप सेकते हो तो उसका भी कवर जो होता है वो फ्लैशी होके निकल जाता है, उसको chaff कहते हैं. The burning sparks come from the huge fire that the blacksmith uses in his forge. ये जो burning fire आता है, ये जो burning sparks आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? From the huge fire जो blacksmith अपने forge में use करता है. Children get amused to see the burning sparks that fly like chaff from a threshing floor. तो ये already हम बहुत बार discuss कर चुके हैं. अब है thanks. Thanks to thee, my worthy friend, for the lesson thou hast taught. तो अब यहाँ पे है who is being referred to as the poet's friend. पोएट का फ्रेंड किसको कहा गया है और क्यों वो इस फ्रेंड के लिए worthy एडजेक्टिव का यूज कर रहा है. The poet refers to the blacksmith and thanks him for the lesson that he has taught to the poet. यहाँ पे फ्रेंड के लिए पोएट जो है ब्लैकस्मिथ के बारे में बात कर रहा है. The way the blacksmith dwells from day and night teaches him that we are makers of our own fate. जिस तरीके से जो ब्लैकस्मिथ है सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा है, वो हमें ये सिखाता है कि हम भी हमारी किस्मत को बनाते हैं. एंड ईच डे वी शेप आवर फ्यूचर एंड लाइफ विद आवर ओन हैंड्स. तो जिस तरीके से वो इन आयरन बैंड्स को शेप करता है, हम भी हर दिन अपने कर्मों से अपनी लाइफ को शेप करते हैं. दिस इज़ वाई ही कॉल्स हिम वर्दी. और वो इसीलिए उसे वर्दी कह रहा है क्योंकि वो एक ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग इंसान है जो कि अपनी लाइफ में कंटेंट है, और इसीलिए वो उसे वर्दी कह रहा है. What lesson has the worthy friend taught the poet? इस worthy friend ने पोएट को क्या सिखाया है?
द स्पीकर हैज़ लर्नड इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स फ्रॉम हिम। स्पीकर ने इससे बहुत इंपॉर्टेंट 2 लाइफ लेसन सीखे हैं। पहला, ही हैज़ लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, मतलब हार्ड वर्क की वैल्यू उसने सिखाई है। सेकेंड, ही हैज़ लर्न द लेसन ऑफ लाइफ विद इज ट्रायल्स, टॉयल्स एंड डिफ़िकल्टीज। दूसरा जो है उसने ये भी सीखा है कि लाइफ में ना बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है, कितनी आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी इट कीप्स ऑन गोइंग। One learns to face hardships even as one pursues good deeds and thoughts. अगर आप जो हो बहुत अच्छे काम कर रहे हो, आपके बहुत अच्छा सोचो, उसके बाद भी आपको ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन we are makers of our own fate and each day we shape our future and life with our own efforts. हम हमारी लाइफ को बनाते हैं और हम ही हमारी लाइफ को शेप देते हैं अपने थॉट्स से, अपनी डीड से। यही चीज़ सिखाई है। अब है Identify and explain the figure of speech used by the poet to illustrate the lesson taught by the friend. तो ये हमने जो लास्ट पोएटिक डिवाइस देखी थी वो था मेटाफॉर। Our fortunes must be wrought, इसका मतलब होता है लाइफ इज compared to a smithy, एक ब्लैक स्मिथ से कंपेयर की जा रही है। At whose forge our fortunes are shaped, जिसके फौज में, उस भट्टी में हमारी जो पूरी जिंदगी है वो शेप होती है। Each burning deed and thought, ये जो बर्निंग डीड और थॉट है ये उस हैमर की तरह हैं जो कि उस एनविल में रखी हुई हमारी लाइफ को शेप करते हैं। सो दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच विच इज मेटाफोर। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लास्ट पार्ट में, विच इज पॉन्डर, थिंक एंड आंसर। डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ द ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ का कैरेक्टर डिस्कस करना है। In the poem The Village Blacksmith by Henry Wadsworth Longfellow, the poet describes the blacksmith as a large, strong man with long black hair and a tan face. तो ये तो physical description हो गया। He is honest and hardworking and doesn't owe anyone anything. वो बहुत honest है, बहुत hardworking है और वो किसी का उसने कुछ नहीं लिया है, उसको किसी को कुछ नहीं देना है। He loves his daughter, issues his mother. So यहाँ पे misses his mother. So just ये वाली लाइन हम हटा देते हैं। He loves his daughter and grieves for his wife throughout all the difficulties and hard work he faces. तो सारी चीज़ों के बावजूद वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, जिसे वो मिस करता है, और अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करता है। अब है, do you think the blacksmith leads a contented life? क्या ब्लैकस्मिथ एक जो है संतोष की लाइफ जीता है, मतलब संतुष्ट लाइफ जिसमें उसको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए? तो yes, he leads a contented life as he doesn't owe anyone anything and is honest with his work. उसने कभी जो है उसको किसी से कुछ लेना नहीं है, उसे किसी को कुछ देना नहीं है और अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहा है, उसके अंदर लालच नहीं है। इसका मतलब वो एक बहुत ही संतुष्ट लाइफ जी रहा है। नेक्स्ट इज वोकैबुलरी। सो यहाँ पे जो ईडियम्स दिए हुए हैं कुछ, जो सारे ईडियम्स का मतलब होता है हार्ड वर्क करना, तो हमें उसको उसके करेक्ट मीनिंग के साथ मैच करना है। सो आई एम गोइंग टू डायरेक्टली शो यू द आंसर। सो गो द एक्स्ट्रा माइल, कम ऑन, यू नीड टू गो द एक्स्ट्रा माइल। इसका मतलब होता है मेक अ बेटर एफर्ट। तुम काम कर रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हें और अच्छी मेहनत करना है। यू हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल। नेक्स्ट इज पुल वंस वेट, तुम्हें अपना भार उठाना पड़ेगा। इसका मतलब डू वंस फेयर शेयर ऑफ वर्क। अगर एक टीम में तुम्हें काम दिया गया है, सो यू विल हैव टू पुल योर वेट, मतलब तुम्हें जो काम दिया गया है तुम्हें उसको ईमानदारी से पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पुल वन सॉक्स अप, कम ऑन पुल योर सॉक्स अप। इसका मतलब क्या होता है? डू मोर देन इज एक्सपेक्टेड, मतलब जो है एकदम कमर कस लो, तुम्हें ये काम करना है, जितना तुम्हें बोला गया उससे अच्छा करके दिखाओ। Work one's fingers to the bone. You have to work your fingers to the bone. इसका मतलब क्या होता है? Work very hard. You have to work your fingers to the bone. मतलब बहुत ज़्यादा कस के काम करना है। Get one's hands dirty. You have to get your hand dirty. इसके 2 मतलब होते हैं। एक तो या तो आपको कोई इलीगल काम करना है, या तो be involved with every aspect of the job. ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है घर साफ कर दो तो आपने बोला कि हाँ मैंने सिर्फ ये काम कर दिया। यू हैव टू क्लीन द वॉशरूम ऑल्सो, यू हैव टू क्लीन द किचन ऑल्सो, नॉट ओनली द गुड पार्ट ऑफ द जॉब, राइट? सो दैट इज नोन एज यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी। नेक्स्ट है प्रोफेशन की बात करते हैं। तो यहाँ हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स में सही सफिक्स लगा के हमें इसका प्रोफेशन बनाना है। जैसे डायरेक्ट का हो जाएगा डायरेक्टर, इन्वेंट इन्वेंटर, रिपोर्ट रिपोर्टर, इंस्पेक्टर, कंपोजर, लेक्चरर, पियानिस्ट, वायलिनिस्ट एंड ड्रमर। ये रही इनकी स्पेलिंग्स। ओके, पियानियर नहीं होता, वायलिनर नहीं होता, पियानिस्ट होता है, वायलिनिस्ट होता है।
ओके अब नेक्स्ट है प्रोफेशंस। अ पर्सन इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिशियन। एक जो स्पेशलिस्ट होता है न्यूट्रिशन में, वो न्यूट्रिशनिस्ट होता है, या डाइटिशियन कहते हो आप उसको। अ पर्सन हु इंस्टॉल्स एंड मेंटेन्स इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, उसको इलेक्ट्रिशियन कहते हो। अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड इन मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिशियन होता है। अ पर्सन हु कैन परफॉर्म मैजिक, वो मैजिशियन होता है। मैजिशियन नहीं, मैजिशियन होता है। ओके अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स और प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। अब होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। जैसे आपने बोला ब्यूटिफुल और माइटी मैन और सिन्यूई हैंड्स, ये क्वालिटी बता रहे हैं। क्वांटिटी 1 2 3 ऑल मैनी सम, ये सब होते हैं क्वांटिटी। जहां आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं तो ये 4 होते हैं, दिस दैट दीज दोज। और इंटरोगेटिव में आ जाते हैं क्वेश्चंस व्हिच, whose, what, where. ओके ये सारे आपको ग्रामर के वीडियोस में पता चल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है विद द करेक्ट एडजेक्टिव्स। सो आई डायरेक्टली शो यू द आंसर्स। द न्यू बॉर्न किटन वॉज टू फीबल टू क्राई, मतलब बहुत ही नाजुक थी। टू फीबल बहुत कमजोर थी, टू क्राई। द न्यू किचन कैबिनेट इज नॉट स्टर्डी इनफ टू होल्ड द हैवी वेसल्स। स्टर्डी नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसमें आपने बड़े बड़े वेसल्स रख दिए। My new smartphone is not as slender as my previous phone. Slender मतलब sleek, पतला। मेरा पहला फ़ोन जो था बहुत स्लेंडर था, बहुत स्लीक था, बहुत पतला सा था। ये कितना थिक है, हैवी है। It is dangerous to go skydiving without proper training. It is dangerous मतलब dangerous का मतलब तो सबको पता है। The hunter was a brave man, but he lived in mortal fear of lizards. वो था तो बहुत brave, लेकिन उसको lizards से बहुत डर लगता था। मॉर्टल मतलब एकदम जानलेवा डर, यू नो। अब है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट एडजेक्टिव एंड स्टेट देयर टाइप्स। सबसे पहला है देयर वर डैश रीजंस। अब रीजंस जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं ना, मैंने बताया 1 रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन, तो इसके लिए मच यूज नहीं होगा, मेनी यूज होगा, क्योंकि मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। तो आप बोलोगे देयर वर मेनी रीजंस फॉर देम टू सेलिब्रेट। ठीक है अब यहाँ पे आप नंबर बता रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? क्वांटिटी। ये क्या हो गया? क्वांटिटी। नेक्स्ट इज even though I have been working for 2 hours, I have made dash progress with my project. अब यहाँ पे भी little यूज होता है जहाँ अनकाउंटेबल होता है, जहाँ आप काउंट नहीं कर सकते। कैन यू काउंट प्रोग्रेस? नहीं। आप मेजर कर सकते हो, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? लिटिल। अगेन ये किस चीज को बता रहा है? क्वांटिटी। नेक्स्ट इज डैश इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कैन यू सी अ क्वेश्चन मार्क? मतलब आपको क्वेश्चन बनाना है तो आप बोलोगे व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये हो गया इंटेरोगेटिव। क्या हो गया ये? इंटेरोगेटिव। मनी इज द डैश मेंबर ऑफ द फैमिली। जब हम बात करते हैं एज की तब हम एल्डर या एल्डेस्ट यूज करते हैं। पुरानी जब हम बात करते हैं तब हम ओल्ड, ओल्डर या ओल्डेस्ट यूज करते हैं। तो मनी जो है पुराना नहीं है, सबसे बड़े हैं वो घर में, तो हम बोलेंगे एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। अब यहाँ पे जो तुम एल्डेस्ट यूज कर रहे हो तो तुम उसमें क्या बता रहे हो? यहाँ पे तुम क्वालिटी बता रहे हो, क्वांटिटी नहीं बता रहे हो, क्वालिटी बता रहे हो। ओके नेक्स्ट इज डैश इज द पैलेस ऑफ बाज बहादुर। वो है तो यहाँ पे हम बोलेंगे दिस इज द पैलेस ऑफ बाज बहादुर। अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क होता ना तो तुम्हें विच यूज करना पड़ता। तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव। ओके एंड देन इट इज दिस इज द डैश वीक ऑफ माई वेकेशन। तो यहाँ पे हम कभी नहीं बोलते दिस इज द 2 वीक, हम बोलते हैं दिस इज द 2nd वीक। और यहाँ पे भी नंबर पता चल रहा है तो ये भी क्या हो गया? क्वांटिटी हो गया। ओके क्लियर? तो अब आंसर्स देख लेते हैं। ये रहे हमारे आंसर्स। And here we are done with this chapter. So thank you so much everyone for being with me. And ये सारे वीडियोस के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को देखना ना भूलें। ये था हमारा होम पेज। बस वहाँ पे जाके आपको करना क्या है? क्लास सेलेक्ट करनी है, क्लास के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के बाद आपको जो चैप्टर पढ़ना है उस सब्जेक्ट का, एंड योर वीडियो विल स्टार्ट लाइक दिस। राइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लाया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल, जहाँ पे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी अब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पूरा कंटेंट अब आपके लिए हिंदी में भी अवेलेबल है।
Now you are supposed to tell me that if you like this video or no. How would you tell me that? By giving me a like and share and subscribe to our channel. Thank you so much. I'll see you soon in my next video. Bye bye.